Assalamu alaikum and welcome to the run chase. Tedo Rangers in pursuit of 169. The two openers in the middle. Sarshil Abbas is in the middle. And who's alongside him? There is a slip in place. No third man. There is a backward point, straightish point, cover point, extra cover. Look at that portion. 3 men on that area now. Straightish point goes down toward a sweeper of cover. And there is extra cover and long off in place. Mid on within 30 odd. There is a scare leg on the fence. A backward of scare. Imtiaz left to begin as the fresher. First ball driven, but straight to mid on. No run there. It's a dot ball. It is Sarshil on strike who played that ball onto the onside, but straight to Salimir. And Salimir and his late hero Shalput Sultan set 169. Slip in place. Again onto the pad line. This time works it away. Scamper through before Salim can come in and stop the ball at short mid-wicket area. A single is all he's going to get. He's underway. So is Tedo Rangers. One without loss in over number 1. अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत सभी श्रोताओं का। दूसरी पारी लेकर के हम आपकी सेवा में उपस्थित। हालांकि प्रारंभ हो चुकी है दूसरी पारी। 2 गेंदें फेंके जा चुके हैं। खाता खोल लिया है टेडो रेंजर्स की टीम ने। 1 रन बगैर नुकसान के सरशील अब्बास नौसा की छोर पे और दाएं हाथ के बल्लेबाज अब्बास से अकबर सामना करने के लिए तैयार है। इम्तियाज लेफ्टी का ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, लेकिन धीमी गति से सीधे उनके पैड पे टकराई। एक हल्की सी अपील हुई लेकिन कोई प्रभाव नहीं वहां पर बल्लेबाजों पर। रन संख्या में इजाफा नहीं। एक दूसरी पारी प्रारंभ हो चुकी है। 169 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के विरुद्ध टेडो रेंजर्स की टीम को। इम्तियाज लेफ्टी बाएं हाथ के गेंदबाज इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, फिर खूबसूरत गेंद, बहुत बढ़िया गेंद बाहर की तरफ। एक कोण बनाया। विकेट कीपर वसीम काचरो के दस्ताने में प्रशंसा की साथ ही खिलाड़ियों ने अच्छी गेंदबाजी। शुरुआत में दबाव बनाना होगा बल्लेबाजों पर इम्तियाज लेफ्टी को। 1 for none. Past an edge there. There is a slip in place. Anything loose in it? You got wicket keeper up to the stump. Wasim Kachru and his reflexes. Then there is a slip. Nadeem Dar is there. Here is skipper again. This time driven. But again straight to field. Only a single. With that, Samir Akbar is... it's Basit Akbar, sorry. Basit Akbar is up the mark. Both the batters, both the openers underway in style. 1 each, a 1 apiece. 2 for none in over number 1. 2 रन बगैर नुकसान के बासित अकबर नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे सरशील के लिए गेंद लेग स्टंप पर। ये दे शाहीन गेंद और इस प्रकार की गेंदबाजी से बचना होगा प्रारंभ में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की गेंदबाजों को। 1 रन और अतिरिक्त के रूप में और 1 रन के साथ रन संख्या 3 सुल्तान के विरुद्ध। 169 का लक्ष्य मिला है 20 ओवर में और शुरुआत एक बढ़िया चाहिए वहां टेडो रेंजर्स की टीम को। और ऐसे में इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं। वो चाहेंगे कि प्रारंभ में एक विकेट मिले। पावर प्ले के अंदर कम से कम 1-2 विकेट चटकाना होगा सुल्तान की टीम को। एक दबाव बनाना होगा वहां बल्लेबाजों पर। सरशील अब्बास के लिए अगली गेंद इम्तियाज लेफ्टी की और इस बार अच्छी गेंद थी। उसको फिर खेला मिडॉन की और वहां सीधे सलीमीर के पास शानदार क्षेत्ररक्षण। हालांकि सलीमीर ने आज बेहतरीन वो 51 रनों की पारी खेली। अंत में 91 रनों की वो जो साझेदारी वहां निभाई 7वें विकेट के लिए आके पड़ा और सलीमीर ने, जिसके चलते 169 तक वहां टीम पहुंच पाई। ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टेडो रेंजर्स 3 बगैर नुकसान से 169 के जवाब में। We're done with over number 1. Target is 169 and Sultanas need to win this one, and if they want to stay alive in the tournament, if they are to compete, and they need to win this one at any cost. Changing the bowling. Who's gonna bowl in over number 2? Sahil Khan into the attack. A pacer from South Kashmir. Sahil Khan is gonna bowl. On strike will be Sarshil Abbas. Sarshil 1 of 3, Basit 1 of 3. Both the batters off the mark. But first over it's a steady start. Just 3 of it. 2 off the bat, 1 in the form of extras. That was a wide delivery. Little adjustment in the field. 1 more added to the onside field. There is a short fine leg in place. Tausif Leghi is there. Bit unlucky today. Got run out. And it's going to be Sahil Khan to bowl. Slip is in. Here is Sahil. Wraps him on the pad. Angle takes it down leg. And a little fumble on the field. Allowed a single in the form of leg byes. 1 more run added. 4 with a loss in over number 2. और 1 रन के साथ रन संख्या 4
बगैर नुकसान के ये दूसरा ओवर साहिल खान ने गेंदबाजी प्रारंभ की है इम्तियाज लेफ्टी के साथ दूसरे ओवर में। और मध्यम गति के तेज गेंदबाजी समय गेंदबाजी कर रहे हैं सरशील अब्बास, उनके सामने एक दिग्गज खिलाड़ी है और इन परिस्थिति में अगली गेंद लेकर के तैयार ये गेंद। और इस बार लेग स्टंप पर फिर दिशाहीन गेंद, अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया और गेंद सीधे वहां विकेट कीपर के दस्ताने में। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या 5 पर पहुंची दूसरे ओवर में। और इन परिस्थितियों में दूर वाले छोर से गेंदबाजी हो रही है, हालांकि शुरुआत इस पारी की हो चली है, दूसरा ओवर मात्र गेंदबाजी का। और इन परिस्थिति में थोड़ा सा दबाव बनाना होगा, शुरुआत में एक बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी साहिल खान को। अगली गेंद लेकर के तैयार, एक बार फिर राइट आर्म ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा होगा इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अपनी दिशा लंबाई भटके और 1 रन और लगातार अपनी दिशा और लंबाई से भटक रहे वहां गेंदबाज। और इस प्रकार की गेंदबाजी से थोड़ा सा परहेज करना होगा, क्योंकि शुरुआत में आप इस प्रकार की अतिरिक्त गेंदबाजी करेंगे, दबाव जो बल्लेबाजों पर होगा वो अपने आप छटेगा। तो शायद यहाँ बातचीत जरूर करनी होगी कप्तान को अपने गेंदबाज साहिल खान से। 1 रन और खाते में जुड़ा, ये छठा रन आता हुआ 1.1 ओवर की गेंदबाजी। और सरशील अब्बास सामने है जिन्होंने मात्र 1 रन अभी तक बनाया है 3 गेंदों से। ये गेंद फिर ऑफ स्टंप से बाहर और फिर वाइड का इशारा, एक और अतिरिक्त रन और 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा होता हुआ 7 रन। खराब गेंदबाजी यहां पर साहिल खान के ऑफ स्टंप से काफी बाहर रख रहे हैं गेंद, जिसके चलते कुछ अतिरिक्त गेंदें लगातार देखने को मिल रही है। और इस प्रकार की गेंदबाजी से बचना भी होगा, क्योंकि सरशील अब्बास और उनके साथ बासित अकबर की जोड़ी बीच मैदान में डडो रेंजर्स की ओर से, और वो चाहेंगे कि शुरुआत में उन्हें थोड़ा सा जमने का अवसर मिले। और उस अवसर में आप अगर सहयोग इस प्रकार की गेंदबाजी से करें तो फिर दबाव गेंदबाजों पर अवश्य होगा। अगली गेंद देकर के तैयार, दूर वाले गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार खूबसूरत है। ये वो लाइन ऑफ लेंथ है जहां पे आपको गेंदबाजी करनी है, सीधे विकेट की ओर वापस खेला बॉलर की दिशा में। हालांकि स्टंप टू स्टंप आप गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पे वहां पर बल्लेबाज को आजादी नहीं मिलेगी और ऐसे में दबाव बनाया जा सकता है बल्लेबाजों पर। सरशील अब्बास सामने है जो कि इस समय 5 पे समझते नापाद है। कुल रन संख्या 11 रन, 1.3 ओवर की गेंदबाजी। ये दूसरा ओवर पारी का चल रहा है, 169 का लक्ष्य जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है टीआरसी डेलगेट से। कश्मीर कप सीजन 2 2024 के अंतर्गत ये 18वां मुकाबला, हालांकि आज दूसरा मुकाबला भी होना है और उसका भी लाइव प्रसारण आप तक पहुंचेगा। इस बार हवा में और पीछे खिलाड़ी, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा की ओर जा रही है, उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं और जब तक वे पहुंचते गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए एक अवसर जरूर बना था वहां, नदीम डार और साथ में एक और खिलाड़ी मुंतजिम समीपते थे। हैं और इन परिस्थितियों में अब जाकर के नया ओवर पारी का 30वां ओवर इम्तियाज लेफ्टी अपने कोटे के दूसरे ओवर में गेंदबाजी करेंगे, लेकिन इस ओवर में कुछ खराब गेंदबाजी देखने को मिली साहिल खान द्वारा और अब जाकर के वो तैयार 30वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। हालांकि इम्तियाज लेफ्टी होंगे जो कि दूसरा ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं और पावर प्ले के अंदर एक विकेट की आवश्यकता या अवश्य चाहिए, एक विकेट दबाव बनाने के लिए सरशील अब्बास और बासित अकबर की जोड़ी से बीच मैदान में। Well, 20 on the board, good start, positive start. 2 overs done, 20 on the board without loss. This is what Dedo Rangers require up front against Imtiaz and company. In the air but safe and into the gap too, down to the extra cover boundary for 4. In a slash and in a flash.
races past everyone. That 4 brought to you by Just Bukhara. Quality blow and takes Didu Rangers to 24 without loss in over number 3. 24 तक पहुंचा दी है रन संख्या और धीरे धीरे से एक अच्छी शुरुआत अब तक दोनों बल्लेबाजों के अगली गेंद लेकर के तैयार। इस बार फिर लेग स्टंप पर, हालांकि वहां वसीम काचरू के हाथ पे गेंद टकराने के बाद फाइन लेग की ओर चली गई। वहां खिलाड़ी तैनात पलट कर तेजी के साथ दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और वाइड का इशारा 3 आते एक रन संभव थे वाइड के रूप में और रन संख्या 27। और यहाँ दबाव अभी तक बल्लेबाजों पर छोड़ नहीं पाए गेंदबाज। कुछ दिशाहीन गेंदबाजी, चाहे वो साहिल खान हो चाहे इम्तियाज लेफ्टी हो, लेग स्टंप पर अपनी दिशा भटक रहे हैं वहां पर गेंदबाज इम्तियाज लेफ्टी। 27 without loss in just over number 3. Expensive of the lot so far. Next one wide of the off. Searching for that big shot there. But ball underneath the bat into the safe hands. Scorer man Starek 27, and this over we saw 2 balls, 7 coming. 7 of 2 balls, and Imtiaz need to understand that as a skipper. He need to step up so that others can learn the lesson. But at the moment it's 27 without loss. 169 is the target. Nicely done again. Worked away and scamper through. Good running between the wickets. And look at this scorecard. It's 28 without loss. Good start, steady start, and a perfect one for Didu Rangers. तीसरा ओवर मात्र इस समय चल रहा है जहां तक गेंदबाजी का सवाल है। सुल्तान वारिस बारामुल्ला की ओर से इम्तियाज लेफ्टी ने गेंदबाजी प्रारंभ की अपने दूसरे ओवर में कोटे के वो गेंदबाजी कर रहे हैं। 1 ओवर की गेंदबाजी साहिल, और साहिल ज्यादा कुछ प्रभाव छोड़ नहीं पाए। कुछ अतिरिक्त गेंदें उन्होंने फेंकी, लेग स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, जिसके चलते कुछ अतिरिक्त रन जरूर मिले। वो जो दबाव शुरुआत में बनना चाहिए था वो दबाव फिलहाल छटता हुआ दोनों बल्लेबाजों से, और ऐसे में सरशील अब्बास जो दिग्गज खिलाड़ी है वो इस समय सामना करने के लिए तैयार। विकेट कीपर वसीम काचरू हमेशा की तरह बिल्कुल स्टंप्स के साथ जुड़े हुए, और ऐसे में इम्तियाज लेफ्टी अगली गेंद करके, और इस बार पैड पे टकराई, जोरदार अपील की जा रही है लेकिन स्वीकार नहीं किया वहां पर शौकत मेहदी ने। उस समय ज्यादा विश्वास में कम, नकारा, रन गति में वृद्धि नहीं। 28 2.4 के बाद डिडू रेंजर्स कश्मीर बगैर नुकसान के। Well, shot for LBW, turned down by umpire Mehdi, so no harm done. 28 without loss in over number 3. 169 is the target for Didu Rangers. Positive start, perfect one is the next one. This one in the gap, but there is man behind Scare. Does well to stop the ball. Only a single takes it to 29 without loss in over number 3. 169 is the target, but this is a positive start and a perfect one. But on the other side, Sultanas need to get rid of the partnership as early as possible. साझेदारी को तोड़ना होगा जल्द से जल्द, क्योंकि आवश्यकता भी है, तब जाकर के कोई दबाव बनेगा बल्लेबाजों पर। अगली गेंद इम्तियाज लेफ्टी की, इस बार अच्छी गेंद थी, इस बार खूबसूरत गेंद, हालांकि ऑफ स्टंप पर आती ये गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। यहाँ ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और 3 ओवर में अब तक 29 रन बने हैं। 3 ओवर के बाद 29 बगैर नुकसान की अच्छी शुरुआत जिसकी क्या आवश्यकता थी, और ऐसे में अब जाकर के नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पारी का 4था ओवर अब जाकर के प्रारंभ होने जा रहा है। Over number 4 is about to start. 3 down. It's 29 without loss. Sultan Warriors in a spot of bother here with the bat, and the middle order fail to deliver. But now with the bowlers a leaking run straight away. Up run 29 of just 3 overs. 169 is the target, and they are still 140 runs behind. 140 runs needed of 102 balls. All 10 in Kitty. That is the important point. That is the important thing. और अब जाकर के 4थे ओवर की शुरुआत, हालांकि 29 रन बने 3 ओवर में। अरे बासित अकबर के साथ सरशील अब्बास की जोड़ी समय पेश पैदा है। जहां तक डिडू रेंजर्स कश्मीर की टीम का सवाल है, और पावर प्ले समय ऑन है। पहला पावर प्ले जो 6 ओवर का रहता है, अनिवार्य पावर प्ले T20 के हिसाब से, और उस पावर प्ले में अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी, 3 ओवर का आना बाकी। लेकिन शुरुआत की बात करें, 29 रन बना लिए हैं यहाँ पर टीम ने। अच्छी शुरुआत जिसकी क्या आवश्यकता थी। यहाँ 1 विकेट की तलाश, और कम से कम 1 विकेट पावर प्ले के अंदर चटकाना चाहिए सुल्तान वारियर्स की टीम। Well, surely they need one over here. They need badly one in the power play, within the power play. But it's 29 without loss. And we'll have to wait and watch. Short pause in the game. And Didu Rangers chasing 169. They are 29 without loss. 140 runs behind, but in complete control at the moment. And openers are going really nice.
देखिए जितना आप जल्दी यहाँ विकेट चटकाएंगे उतना बेहतर रहेगा और दूसरे ओर बल्लेबाजों का प्रयास होगा कि इस साझेदारी को और बेहतर किया जाए। कम से कम पावर प्ले के अंदर विकेट को सुरक्षित रखते हुए वो जो शुरुआत में दबाव रहता है विकेट गिरने का उससे बचा जाए। और अगर आप पावर प्ले के अंदर 6 विकेट सुरक्षित निकालते हैं, रन संख्या को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हैं, तो वो जो आने वाले बल्लेबाज होंगे उन पे दबाव नहीं होगा। वर्तमान स्थिति में जो बल्लेबाज कर रहे हैं बल्लेबाजी, उन पे दबाव नहीं होगा। तो कुल मिलाकर एक संघर्षपूर्ण क्रिकेट इस समय देखने को मिल रहा है। 29 without loss, 3 down, short pause in the game, delay in the play. We'll have to wait and watch. Short pause continues, umpires and match referee Busy. They're having words with both teams there, and conversation is going on. 140 runs away to the Rangers. They are 29 after 3 overs. But what a start! Positive start, perfect start, flawless one. A wicketless one, unhurt, 29. 29 और वो जो दूसरा ओवर रहा साहिल खान का जिसमें कुछ अतिरिक्त गेंदबाजी देखने को मिली। हालांकि खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ और ऐसे में थोड़ा सा विलंब जरूर हो रहा है। मैच रेफरी अब मैदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं, साथ में दोनों अंपायर, हालांकि शौकत मेहदी के साथ कुछ बातचीत हो रही है। फिलहाल 3 ओवर पूरे 29 रन और बात हो रही थी मुकाबले की। बेहतर शुरुआत आज देखने को सुल्तान वॉरियर्स द्वारा ओपनिंग भागीदारी जो अच्छी रही, लेकिन उसके बाद जब वसीम काचरू आउट हुए, फिर इम्तियाज लेफ्टी चलते बने, फिर लगातार अंतराल के बाद विकेट गिरते चले गए। लेकिन एक समय में 68 पे 6 विकेट, वहां से प्रतीत हो रहा था कि शायद ये टीम एक न्यूनतम लक्ष्य पर जो है सिमट जाएगी। लेकिन क्रिकेट ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें इस खेल को क्यों महानता दी गई है, इसे क्यों महान अनिश्चितताओं का खेल कहा गया है। और 91 रनों की वो साझेदारी आकिब परा और सलीम मीर ने बनाई, जिसके चलते वो 168 तक पहुंचे। 169 रनों का विजयी लक्ष्य। दूसरी पारी 3 ओवर की गेंदबाजी, 29 बने हैं। इस समय खेल थोड़ी देर के लिए रोका हुआ है और ऐसे में देखना होगा कितना विलंब होगा इस मुकाबले का। हालांकि 2 मुकाबले खेले जाने, दूसरा मुकाबला जो कि डेडू रेंजर्स कश्मीर सामने होगी जे&के पुलिस वॉरियर्स के। That's another big game coming our beloved viewers with this afternoon. JK Police taking on Dedu Rangers, and it's a must-win game for Dedus and Sultans. And let's find it out who's going to win this one. Who will walk away with 2 points from this one? Dedus or Sultans? Short pause continues. And I can't understand what's going on. I think it's there is a reason that someone has put on a different color of trouser. It's the reason. And we'll have to wait and watch. Short pause continues as Muntazir Boom Boom is walking off the field. He's not having trouser alongside. They're gonna be 10 on the field now. It's a strict penalty in this tournament. We have seen these are called and known as ground rules, Nazir. You won't find this kind of rule in MCC, in Marylebone Cricket Club, in their book, and even in the ICC. But this is to teach them a lesson that uniform means we are one. Uniformity, equity, equilibrium, equostatic, and we are one under the umbrella of the tournament. We are one, irrespective of color, creed and caste. That's what cricket conveys a message, that brotherhood, टीम स्पिरिट, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। और इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि क्रिकेट ने इस स्वाभाविक खेल ने जो डिसिप्लिन सिखाया है, जो वो सहजता सिखाई है, वो जो एकता सिखाई है, उसको बरकरार रखने के लिए वो जो नियम हैं, वो जो नियम इस समय देखने को मिल रहे हैं और उन नियम का बड़ी संचारिका के साथ उनका पालन हो रहा है। और ऐसे में अब 10 खिलाड़ियों के साथ वो क्षेत्र रक्षण करेंगे और मुंतजम इस समय मैदान से बाहर जा रहे हैं। अगली गेंद नेवर की, उस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि सलीम मीर को परिवर्तन के तौर पर लेकर के आए। अच्छी गेंद थी, 1 रन तो बटोर लिया, पलट कर दूसरे रन के लिए जी नहीं, केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन और 3.1 के बाद 30 बगैर नुकसान के डेडू रेंजर्स कश्मीर। 30 on the board, and Dedu's playing some good cricket here. Partnership is 30 of 19 balls. The 2 men for Dedu Rangers in the middle to make those 169. One is Basit Akbar, and he's got Sarshil Abbas, technically sound batter. Talking of his stroke play, he's a nice guy when it comes to the style, when it comes to the copybook stylish proper cricketing strokes. Lures him into the drive, negligible foot movement, unable to connect that shot. It's a dot ball. It was bowled wide of the off. I think slip should have been in place if you're going to use that kind of angle.
creates that sort of an angle, so you should have slip in place with a new ball. देखिए वहाँ स्लिप तैनात नहीं है, आप ऑफ स्टंप से बाहर आक्रमण रख रहे हैं, तो ऐसे में स्लिप का तैनात होना अवश्य है, लेकिन वो हटा ली गई है फिलहाल ये गेंद। और इस बार अच्छी गेंद थी, मिडिल स्टंप पे उसको खेला एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र के और पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं उस, और जब तक भी गेंद तक पहुंचते वापस धकेला, फील्ड कर लिया, लेकिन पलट कर कुछ रन बटोर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज। और जब तक थ्रो वसीम काचरू के पास आता, 2 रन संभव थे और बटोर लिए, और 3 रन संभव थे और 3 रन, और यहाँ देखना होगा कितने रन बटोरेंगे। फिलहाल 3 रन और खाते में, जी हाँ, और 33 रन संख्या जहाँ बढ़ती हुई डडू रेंजर्स कश्मीर की। अगली गेंद सलीम मीर लेकर के तैयार सरशील के लिए, इस बार ऑन साइड में, और उस और खिलाड़ी हैं, 1 रन तो जरूर मिलेगा। आखिर बरा पहुंचे, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया, 1 रन और खाते में, 34। अच्छी साझेदारी और अच्छी रणनीति के तहत इस समय डडू रेंजर्स के प्रारंभिक बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। 34 without loss in over number 4, and Muntasir is off the field without Trouser. Now Trouser is coming on for this lad. Here is Salimir again to Samir. Oh, can't middle this one. Should have been put away, but Hoffit takes it down to it in front of Scaron onside. Just a single. It was asking to be hit. Should have been more than a single, but unable to middle that one. Only a single. It's 35 without loss. We are in over number 4. 35 रन संख्या पहुंच चुके हैं। चौथे ओवर में सलीम में तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा चुका है। अगली गेंद सलीम की, और इस बार बड़ा स्ट्रोक ऑफ स्टंप पर, वहां सफलता नहीं मिली, संपर्क नहीं हुआ, गेंद की लाइन में नहीं आए और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। ओवर समाप्त हुआ 4 पूरे 35 बगैर नुकसान के। समस्या यहाँ रन संख्या बहुत बढ़िया, लेकिन सुल्तान के लिए अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है इस पावर प्ले के 4 ओवर में। Sultan and the bowlers unable to draw that first blood, still in search of a breakthrough here. But on the other side, 2 batters are putting on a show with the bat. Decent approach, decency, perfect start, looking nice, in all sorts of control at the moment, in complete control, in ascendancy, right on top, riding on the bowlers, enjoying the batsmanship in the middle. 4 done, 35 without loss. As we watch Imtiaz Lefty again back into the attack, 2 overs, none for 12. In search of a breakthrough, they need a wicket. Here is Imtiaz Lefty. This one wraps him on the pad, but down the leg side, that angle takes it down leg bited. 36 without loss. Over number 5 here in 169 is the target, but Sultans need to strike up front. देखिए 1 विकेट की तलाश होगी जरूर, और डडू रेंजर्स की टीम यहाँ विकेट लेस रहेंगे इस सत्र में। अब कोशिश करेंगे कि उन्हें यहाँ किसी आधार का जो है जोखिम उठाना ना पड़े, किसी विकेट का पतन ना हो। तो ऐसे में अच्छी बल्लेबाजी अब तक बासित अकबर, सूझबूझ भरी पारी, शांत दिमाग, कोई अतिरिक्त जोखिम उठाया नहीं है। इम्तियाज लफ्टी तीसरे ओवर में अपने कोटे की गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये पारी का कुल मिलाकर 5वां ओवर, 36 रन बगैर नुकसान की ये गेंद। इस बार फिर गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों के साथ उसको प्लेस किया, ऑफ साइड में थ्रो किया वहां पर, लेकिन उससे पूर्व 1 रन पूरा कर चुके थे सरशील अब्बास और बासित अकबर। 1 रन और खाते में 37, 4.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5वां ओवर पारी का चल रहा है। Well, Nazir, talking of Sultan Warriors, they need to win this one. It's a must-win game. You lose, you go back home. You need to win this one to stay alive in the competition. You lose this one, you go back home. You need to pack your bags, boat flight from Humama to Baramulla. 37 रन, और ऐसे में अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि वहाँ शरीर के साथ टकराई, जरूर दौड़ के लिए जरूर पड़े थे, और ऐसे में 37 रन बगैर नुकसान के 4.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। यहाँ विकेट के लिए जूझ रहे हैं गेंदबाज, और अभी तक सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला के गेंदबाजों को सफलता हाथ नहीं आई है। अगली गेंद इम्तियाज लेफ्टी की दूर वाले छोर से बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार बड़ा स्ट्रोक और कोई अवसर नहीं, गेंद सीमा पार, जस्ट बोखारा छक्का। Stand and deliver right on top of this one. Admires the pull. Earn him a 6. Just Bukhara 6. What a shot, what a connection. Brilliant shot right on top of the bounce. And Nazir talking of his supremacy right on top of the ball, and then pulled it to perfection. What a shot and what a connection. It was off the bat of Samir Akbar. Is it? Oh no, it's Basit Akbar, sorry. Why am I throwing it out again and again? I throw it out once more. Samir Akbar. Correction comes in. It's Basit Akbar in the middle. But with that 6, it's 43 without loss, chasing 169.
Thank you, Tahir Saab, for your presence. Tahir Bakshi is here. 43 without loss as we watch Imtiaz again. This one wanted to go hard at it. Up the queue end. No run, that's a dot ball. Each and every dot ball is precious. And they need a breakthrough badly at the moment. But Dedu's enjoying their good start, flawless one. जितना आप यहाँ विकेटलेस रहेंगे इस सत्र में, जहाँ तक सुल्तान की गेंदबाजी का सवाल है, उतना दबाव पड़ेगा गेंदबाजों पर। ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक, खूबसूरत हवा में, यहाँ विकेट मिलेगा क्या? नहीं, जी हाँ, विकेट मिल गया। यहाँ तलाश में थे इम्तियाज लेफ्टी ने सफलता प्राप्त की और अब जाकर के बासित अकबर को लौटना पड़ेगा वापस। 43 पे पहला विकेट 5वें ओवर में। First blood, first wicket, and a sigh of relief for Sultan Warriors. Something to cheer about, and it's the wicket of Samir. Oh, once again, it's Basit Akbar. Sorry, we have one of the players, Samir Akbar, but it's Basit Akbar on his way back to pavilion. This is JK Sports Time, bringing you the ball-by-ball commentary of this all-important game number 18. It is Kashmir Cup Season 2. We remind you of proud sponsors: Anthem Supports India, Fashion Feast, Shining Star Pump, or MHM multi-brand by Rafi Vani. We got Hamdan Hurricane as the importers and the exporters, Dulgate Sports Club, and we got H&D Complete Kidswear near Natipura, Srinagar. And after 43 for the loss of one. The lone man out today early this afternoon is Basit Akbar. Is on his way back to pavilion. New man walks in at number 3. Who's in at 3? It's Dikshat Kundal, I think. Dikshat walks in at number 3. This lad is in good form. He's in good spirits nowadays. And he walks in at number 3. An ideal position for Kundal-like batter to come in and express himself and enjoy his batsmanship and use his rare skill set and display that character with the bat. Let us see. Is he going to do so? Is he going to exhibit? Let's find it out. Sultan is getting that much needed breakthrough. They needed that, and in the end getting. And it was Imtiaz Lepti who provided his side with a much needed one. He bowled 3 overs, 1 for 19. Skipper 3 overs, 1 for 19. Let's see your comments about इम्तियाज लेफ्टी। ये अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि अगर आप 6 रन के आसपास जो है खर्चते हैं तो अच्छा कहा जा सकता है T20 के हिसाब से, जहां आपको विकेट मिल नहीं रहे थे। अंततः इम्तियाज लेफ्टी ने वहां सफलता दिलाई। सुल्तान को पहली विकेट की आवश्यकता भी थी जल्द से जल्द, और वो सफलता दिलाई इम्तियाज लेफ्टी ने। 5 ओवर में 43 अथवा 43 एक विकेट के नुकसान पे। और अभी भी कुल मिलाकर अगर हम बात करें 90 गेंदों का आना बाकी है और 124 सबब यहां से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 143, हालांकि 43 रन बनाए हैं और कुल मिलाकर 127 रनों की आवश्यकता। जी हाँ, 126 चाहिए जीत के लिए। 90 के दुकाना बाकी, 9 विकेट सुरक्षा। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और इस बार उसको पुल किया हवा में, स्ट्रोक पीछे खिलाड़ी लेकिन नहीं पहुंच पाई। गेंद एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट मौका, चौका यहां निकलता हुआ। He had his heart in his mouth for a while, but ball falling in no man's land. Then it goes into the fence for 4. Now Akipara is at square leg. He was a bit wide prior to this one, but now he's exactly at square leg, just behind square leg umpire. Here is Salimir again, bowling at good pace, 47 for 1. This time he gives himself charge in the air and short a man there. Would have been absolute blind, but he's unable to take that, and he was unable to latch on to the ball. So 2 more runs at 49. He's looked a bit scratchy. This lad, I'm talking of Sarshil Abbas, he's unable to middle the ball. Once again, caught in 2 minds, decided to go at it and gives himself charge, but ended up just on the bounce to Muntazir Boombu. 49 for 1. Over number 6. Last row mandatory power play. Next one wraps him on the pad. Short for LBW, and umpire turned down the appeal, and he believes it was going down the leg. Good decision. It's 49 for 1. छठे ओवर में 49, 1 विकेट के नुकसान पर सलीम मीर दूसरा ओवर अपने कोटे का। 3 ओवर की गेंदबाजी वहां इम्तियाज लेफ्टी ने उन्हें एक सफलता मिली और 1 ओवर साहिल खान का उन्हें हटा लिया गया था और उनके स्थान पर सलीम मीर से गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल, सरशील अब्बास से सामने दीक्षित कुंडल नॉट स्ट्राइक की चोट पे 49, 1 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद खूबसूरत, बेहतरीन, लाजवाब, नजाकत के साथ इस गेंद को खेला। हालांकि उस और खिलाड़ी जा रहे हैं, जब तक वे गेंद को फील्ड करते गेंद की गति खुद ब खुद कम होती हुई, लेकिन 2 रन और खाते में जुड़े। 2 रनों के साथ 50 भी पूरे होते हुए यहाँ टीम के डडू रेंजर्स
51 छठवें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पे। लगातार अच्छी बल्लेबाजी और एक और साझेदारी निभाने का प्रयास अभी तक सफलतापूर्वक दोनों बल्लेबाजों का। सरशील होंगे सामने और सलीम मीर गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद लेकर के चले ये गेंद इस बार आते को चलता अंदर उस गेंद को तिरछे बल्ले के साथ खेला जरूर। उस और है खिलाड़ी जब तक वे गेंद तक पहुंचते फील्ड करते दूसरे प्रयास में, लेकिन उससे पूर्व समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन बटोरने का। 2 रन और 53-51 से जाकर के रन संख्या बढ़ी। 1 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर की 1 गेंद का नाम की। 5.5 done, 53 for the loss of 1. Salim continues to bowl. He's in his second over, none for 16. In search of a breakthrough. With a wide slip in place, again dabs it and beats the man at backward a point. Sahil comes across to field that one. Not a good return. And the two batters pinch a brace. Done with power play, 55 for 1. 6 ओवर समाप्त, 55 बने 6 ओवर में और रन गति बहुत बढ़िया यहाँ डडू रेंजर्स की। भले ही 1 विकेट जरूर उन्होंने खोया है वहां पर बासित अकबर का, जो कि इम्तियाज लेफ्टी ने सफलता प्राप्त की। और यहाँ से देखना होगा क्या स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण होगा, क्या स्पिन गेंदबाजी का प्रयोग होगा सुल्तान वारियर्स बारामूला द्वारा। ये बड़ा दिलचस्प और देखने लायक मुकाबला होगा। और इन परिस्थितियों में 55 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 7वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है दूर वाले छोर से। और क्या यहाँ किसी और गेंदबाज का चयन किया जाएगा या फिर इम्तियाज लेफ्टी? जी हाँ, और अब जाकर के एक और गेंदबाज का चयन। नदीम डार गेंदबाज हो गए सामने। दीक्षित कुंडल 7वें ओवर की गेंदबाजी 6 के बाद 55 1 विकेट के नुकसान पे। Change in the bowling, spin into the attack. It's going to Nadeem Dar. He can use his quicker in between. He's a spinner, but he's got variations. He's got variety in his arm and he's gonna use that. It is 55 for the loss of 1 after 6 overs. We're going to be in over number 6. We're going to be in over number 7. 84 balls, 114 is what they require with 9 wickets in kitty. Slip is in place, but wicketkeeper is up to the stumps. Here is Nadeem. Nadeem to Dikshit. And oh, look at this one. Oh, could be tight on the other side. But Miraj Rasool unaware that Dikshit was halfway mark. He was halfway stage there. And is halfway down the pitch there. But no harm done. It's 55 for 1. You can't get overcautious as you're chasing 169. Next one. It's in the air. And has that gone all the way? It has. Oh, that's 6. And it has done the damage on other side. That 6 brought to you by Just Bukhara. It's 61 for 1. Look at that one. He fetches it from off and middle, or middle and off, then belted it over Skalek for 6. देखिए गजब के फॉर्म में है दीक्षित कुंडल। लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी और आत्मविश्वास देखिए इस खिलाड़ी का, किस आत्मविश्वास के साथ वो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। बड़ी सहजता के साथ उन्होंने गेंद को पिक किया और 6 रनों के लिए गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा। ये जस्ट बुखारा छक्का और इस छक्के के साथ 61 विकेट के नुकसान पर 109 रनों की अब यहां से आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए लड्डू रेंजर्स कश्मीर की टीम को। और सुल्तान को चाहिए यहां से एक और विकेट। Well, in search of wickets, in search of runs, this is what going on at the moment. Dadus need runs, Sultans need wickets. Next one, back away a little bit. Good running between the wickets. With the shot, he's off for a quick single. This is sensible cricket. A 6 followed with a single. This is going to disturb the fielders. This is going to put more amount of pressure on bowler and the fielders. लगातार दबाव बना रहे हैं यहाँ दोनों बल्लेबाज क्षेत्र रक्षणों पर, जहां तक सुल्तान की फील्डिंग का सवाल है। और ऐसे में नदीम डार अगले गेंद लेकर के और इस बार ठीक गेंद के पीछे सीधे बल्ले से खेला मिड ऑफ की और उस और खिलाड़ी तैनात। हालांकि लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक करके गेंद को फील्ड करते 1 रन तो जरूर पूरा कर लिया वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और 1 रन के साथ रन संख्या अब जाकर के 62 पे पहुंची 1 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में। 63 for the loss of 1. Imtiaz lefty isn't happy with Miraj Rasool there, or Shahid Shafi at long off. He wanted Rasool on his toes, and now there were few spectators within the boundary line. Ask her to leave the centre, ask her to stay away, because this is disturbing field there. Now this is good message conveyed and they moved and finally removed. Needed a surgical procedure and done well by umpire Maddy there. Here is Nadeem again, and Dikshit little back away, extra bounce, and Dikshit still interested in a single and sent back. 63 chasing 169, 106 runs away. They still have 79 balls remaining at their disposal to get there
with 9 wickets in kitty on the pad line. Worked away nicely. Held the shot. Only a single. With that single, it's 64-10, the over number 7. 7 done, 64 for the loss of 1. 64 एक विकेट के नुकसान पर 7 पूरे 13 ओवर का खेल यानी कि 78 गेंदें अभी भी शेष हैं और 78 गेंदों से 106 रन चाहिए जीत के लिए, लेकिन 9 विकेट वहां सुरक्षित हैं डरू रेंजर्स कश्मीर के पास। यहां सोच विचार मंत्रणा चलती हुई और ऐसे में देखना होगा क्या तौसीफ रमजान का इस्तेमाल किया जाएगा यहां दूसरे छोर से, क्योंकि दोनों छोर से अब स्पिन गेंदबाजी का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे सुल्तान वॉरियर्स के कप्तान, ये देखते हुए कि यहाँ लगातार कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। जी हाँ, तौसीफ रमजान को अब लेकर के आए हैं, तो एक प्रमुख हथियार, एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज, जहां तक सुल्तान वॉरियर्स An opportunity for Taufeeq Leghi to prove his mettle today. He need to deliver for his team as Sultans are on the receiving end. They need a breakthrough here. देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उनके पास क्षमता है, लेकिन जहां उस क्षमता का प्रयोग करना होगा, यहां उस अनुभव का प्रयोग करना होगा, आवश्यकता भी है सुल्तान को। ये गेंद पहली और इस बार अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप की शेप में उसको खेला जरूर, ऑफसाइड में गेंद लुढ़की, फील्ड तो हुई, रन नहीं मिला। और यहां तौसीफ रमजान को कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा अपने गेंदबाजी के दम पे। यहां सुल्तान को 1-2 विकेट चटक करके देने होंगे, तब जाकर के कुछ दबाव बनेगा बल्लेबाजों पर। अगली गेंद लेकर के तौसीफ चले, उनकी ये गेंद और इस बार कट किया उसको, गेंद जा रही है ऑफसाइड में, खिलाड़ी उसको ऊपर जा रहे हैं, गेंद ठीक उन्होंने सफाई के साथ फील्ड की, लेकिन उससे पूर्व रन पूरा कर लिया। 1 रन और 65 एक विकेट के नुकसान पे 7.2 ओवर की गेंदबाजी, 105 चाहिए जीत के लिए और 76 गेंदें शेष है। A dot and a single. Here is Taufeeq, and scoop comes into play. Does well, and he wanted second. Fumble on the field, allowed second run. Not good piece of field by Akipura, and Nadeem Dar is unhappy. Look at Nadeem Dar. And look at his reaction. He passed on few comments. He's unhappy with Akipura, and Para was bit he got overcautious to be precise. He was sleeping to me. He was in a kind of a slumber. The next one, now Muntazim missed out on that occasion. Another fumble on the field. There wasn't any run. Conceded a single. You need to back your balls. You need to drive singles. This is how you can build that pressure. आपको आत्मविश्वास के साथ यहाँ क्षेत्र रक्षण भी करना होगा, जैसा कि आपने स्पष्ट कर दिया। गेंदबाज को सहयोग करना होगा और सिंगल डबल पे अंकुश लगाना होगा, तब जाकर के दबाव बढ़ेगा बल्लेबाजों पर। ये गेंद और इस बार ये स्ट्रोक बेहतर है, लेकिन पीछे खिलाड़ी है, हालांकि उन्होंने गेंद को फील्ड तो किया, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए जस्ट मुखरा चौका। आजान का समय, दोबारा लौटेंगे आजान के समय के बाद। Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam.
aynı havuz var. Şu esas. Keşke. Hayır. Vitamin Z. Protein. La ilaha illallah. And indeed, Tanvir Azan here, beautiful voice, heart soothing, and it was mouth watering. Wow, what a voice, wonderful words. There is no God but Allah subhanahu wa ta'ala. Coming back to the game, 81 for 1 after 9 overs. 11 overs are gonna come, 66 balls remaining, and they require 88 runs. On Nazir, it's down to 88, below 100. And Sultan is still in search of a breakthrough. That's a high up in the air. Fielder settling underneath, and he takes it in the end. Second wicket is down. Sarshil is gone, and Tausif Ramzan among the wickets. He finds his man, and he is delighted. Why not? अंततः यहाँ विकेट जरूर मिला और ऐसे में इस विकेट की आवश्यकता भी थी, काफी समय से जूझ रहे थे गेंदबाज, एक और विकेट मिले, अंततः वो सफलता दिलाई और इन परिस्थिति में दूसरा विकेट गंवा दिया है सरशील अब्बास के रूप में, और दूसरा विकेट यहाँ मिलता हुआ, और ऐसे में 81 2 विकेट के नुकसान पर दीक्षित कुंडल नाबाद 21 पे, लेकिन सरशील अब्बास को चलता किया यहाँ तौसीफ रमजान ने, अंततः तौसीफ ने सफलता दिलाई, लेकिन यहाँ से सिर्फ विकेट की आवश्यकता बल्कि रन गति पे भी अंकुश लगाना होगा, तब जाकर के दबाव बढ़ेगा. You're absolutely right. They need to drive runs and they need wickets in bundles, in pockets. They need cluster of wickets. And you know that what does cluster and celestial mean? The galaxy of wickets they require at the moment. But you're one coming there were finally. Some respite, but Sultanas, they need to win this one. If they win this, they're alive. If they lose, they need to pack their bags and both fly back to Baramulla territory. जो आपने जिक्र किया कि विकेट्स का कहकशां चाहिए, अरे तब जाकर के आप यहाँ कुछ बात बना सकते हैं, दबाव बना सकते हैं. और ऐसे में अगर बल्लेबाजों की बात करें, आपके पास बल्लेबाजी में दमखम है. हालांकि आमिर सोफी अब संभवतः नए बल्लेबाज आए हैं, और आमिर सोफी के बाद अगर बात करें तो आपके पास फैसल डार है, आपके पास आसिफ मंजूर है, आपके पास आदिल वानी है, आपके पास अंत में आमिर अली है. तो दमखम बल्लेबाजी में है, लेकिन क्रिकेट एक महान अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी संभव है. यहाँ बेहतर तरीके से गेंदबाजी कीजिए, सम से सम गेंदबाजी कीजिए, क्षेत्र रक्षण बहुत बेहतर तरीके से कीजिए, गेंदबाज को समर्थन दीजिए, और बुद्धिमानी का परिचय देने के बाद आत्मविश्वास के साथ आपको न सिर्फ गेंदबाजी करने है बल्कि क्षेत्र रक्षण करना है, और बॉलिंग चेंज समय समय पे कीजिए. तो फिर जो वो निर्णय होगा, वो जो लाभ होगा वो आपको मिल सकता है. तो सिर्फ आखिरी गेंद देकर क्या आमिर सोफी के लिए ये गेंदबाज लेग स्टंप पर टेपा खाया, ऑफ स्टंप की ओर गेंद आई, उसको खेला जरूर, आगे परा पीछे तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया. एक रन, हालांकि सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, लेकिन एक रन जरूर, एक रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 82 2 विकेट के नुकसान पे ये पारी का कुल मिलाकर 10वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ. Well, another fumble, but just a single, and it's 82 for 2 in over number 10. Here is Tausif. Oh, that's a quality shot. That is an excellent shot from Dikshit Kundal. That's for class. And what a shot! Look at a round of applause. That was driven handsomely. Cover drive comes into play. That was brought to you by Just Bukora. It's 86 for 2. What a shot. Excellent. Nice footwork. The next one. Oh, this one. Fumble on the field again. Wicketkeeper and Nadeem Dar unable to understand how to stop that one. देखिए वहाँ थोड़ा सा हल्का फंबल जरूर हुआ, लेकिन भाग्यशाली रहे, वहाँ दौड़ करके रन पूरा नहीं किया बल्लेबाजों ने. रन संख्या अभी भी टिकी हुई 86 2 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद तौसीफ की, कैच ले लिया वहाँ पर. Absolute blindness is screamer of a catch, and this can change the course and complexion of the game. A wicket, one more for Tausif Ramzan, but that's a blind, absolute blind catch of the match. अरे हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ आत्मविश्वास के साथ बेहतरीन क्षेत्र रक्षण करना होगा, अपने गेंदबाज का वहां पर आपको सहयोग करना होगा, समर्थन देना होगा, और एक हाथ से वो लपका हुआ कैच नदीम डार द्वारा पहली स्लिप में, और तौसीफ ने दूसरी सफलता दिला दी अपने इसी ओवर में, और यहाँ 86 पे तीसरा विकेट. Bilal Sultan, it is something special, I believe. He has captured that moment, and it was an easy one. What a goal and what a catch. Absolute screamer. Absolute screamer. Blind. Wonderful. Acrobatic.
And this is Nadeem Dar for you. We're just talking about that. It's again a commentator. It's a kind of a commentator's curse, Nazir. We're talking about that they're unable to stop the ball, but all of a sudden he plucked that one from thin air, outside syllabus to be precise, out of context. अरे कभी कभार क्या हमेशा हमने देखा कुछ ऐसे अवसर पर जहां असंभव को संभव किया, और वो सुल्तान वॉरियर्स ही कर सकते हैं। यहाँ एक बार फिर पिछली गेंद पर एक आसान समा क्षेत्ररक्षण, वहां फंबल हुआ, लेकिन Can I come in here? Nazir, I want to interrupt you. Sorry to interrupt, but I'm gonna use paper to say there are three teams in the world. There are three things in the world who are unpredictable, who are known for their glorious uncertainty. One is the team that is known as on the other side of the border. They can lose to any opponent side in the world. Coming back to Sultan Warriors, they're also unpredictable, and cricket itself is unpredictable. देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, और निश्चित तौर पे यहाँ मैं प्रशंसा करूंगा आपके इन शब्दों के, और पूरी तरह से सहमत रहूंगा, क्योंकि यहाँ इससे पूरा हमने जिक्र किया कि आपको बेहतरीन यहाँ फील्डिंग करनी होगी, बेहतरीन सहयोग करना होगा अपने गेंदबाज का, एक बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी, शानदार क्षेत्ररक्षण के चलते असंभव को संभव बनाना होगा, तब जाकर के परिणाम आपके हित में आ सकता है। यहाँ नदीम डार ने शानदार कैच लपका, और एक समय में जहाँ एक विकेट, और अब देखिए यहाँ 86 पे 3 विकेट गंवा दिए हैं डोडो रेंजर्स की टीम ने। This is the beauty of cricket, and this is the beauty of game of glorious uncertainties. And here comes the uncertainty, the principle on which cricket is based. And we saw 2 wickets in no time, inside an over. He has picked up 2, and that brings left-hander Mahfouz Khan to bat. Slip is still in place. Slip is still stationed there. Tawseef Ramzan, can he turn the tide? He has picked up 2. Can he turn it on its head? Here he is again to newcomer. That's in the air, but it's gonna fall short. It's gonna fall well short of man there. So 1 more run added to the tally. We're done with over number 10. Halfway mark 87 for 3 Dodo Rangers in pursuit of 169. 3 विकेट 87 पे, और ऐसे में 10 ओवर पूरे, यानी कि आधी पारी समाप्त हो चुकी है, और ऐसे में 10 ओवर का आना बाकी है, 60 गेंदें, और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अभी भी 82 सबकते बनाने हैं यहाँ से जीत के लिए, 83 रन बनाने हैं अथवा 82, ये देखना होगा। 82 रन चाहिए 60 गेंदों से, हालांकि उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ अगर आप लगातार अंतराल के बाद विकेट चटकते रहे, रन गति पे अंकुश लगाया जाए तो एक संघर्ष था, अभी भी अनुमान लगाया जा सकता है, संघर्षपूर्ण मुकाबला हो सकता है सुल्तान और डोडो के बीच। Well, still it's came in balance, because talking of Dodo Rangers, they got stars in the lineup. It's a star-studded side. Talented lads in the lineup. They got the captain, the likes of Asif Manzoor there, and they got Adil Wani, who's yet to come, who's yet to bat. And talking of Adil Wani, he's technically sound batter, and even Faisal Dar can launch big. And if you remember last season here, and those late heroics, and that blinder of a knock, and Nazir says, oh Munawar, don't remind me that knock. And that was fantabulous. That was an excellent knock. It's 87 for the loss of 3, halfway mark, evenly poised competition. Contest between bat and ball. It's in balance, hanging in balance at the moment. निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो 50-50% ये मुकाबला, और नज़दीकी स्लिप तैनात बाएं हाथ के महफूज के लिए। नेवर की शुरुआत पहली गेंद, और इस बार खेला उसको हालांकि मिड ऑफ क्षेत्र की ओर, हालांकि पीछे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, 1 रन तो जरूर मिला। आमिर सूफी सामने रहेंगे 10.1, 88, 3 विकेट के नुकसान पर सुल्तान को विकेट चाहिए, और डोडो रेंजर्स की टीम को एक साझेदारी की आवश्यकता। Agree with your statement, you're absolutely right. 88 for the loss of 3, chasing 169. The required rate is 8.24 and over. The scoring at the rate of 8.66 and over. Required rate and asking rate isn't concerned, but they need to keep wickets intact. Oh, this one was an easy one. It was a kind of a suicidal move, swill on its axis, but in the end he connected that shot, and 1 more run added to the tally. With that single, it's 89 for the loss of 3. They're 80 runs away from that magical figure of 169. 169 चाहिए जीत के लिए, 11वें ओवर की गेंदबाजी, और ये 2 गेंदें अभी तक फेंकी जा चुकी हैं, और ऐसे में गेंदबाज डार फाजिल समझते गेंदबाजी कर रहे हैं। फाजिल अगली गेंद लेकर के दाएं हाथ से ये गेंद, और इस बार जगह मिल गई, स्ट्रोक खेला, पीछे खिलाड़ी, कैच वहां पर नहीं लपक पाए, और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। जस्ट मुखारा, क्या ये छक्का होगा अथवा चौका, हालांकि अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करनी होगी, और अभी भी अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा की जा रही है। बड़ा स्ट्रोक जरूर खेला बाएं हाथ के महफूज ने, और इन पर हालांकि इससे पूर्व रन संख्या अब जाकर के समझते
6 रनों का वहां पर निर्णय आया अंपायर का। जी हाँ, और 95 रन संख्या पहुंच चुकी है। 95 पे 3, 10.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद महफूज खान के बल्ले से निकलने वाला ये जस्ट मौका छक्का बाएं हाथ के बल्लेबाज। और यहाँ रन गति पे अंकुश लगाना होगा। डार फाजिल अभी तक कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाए, क्योंकि रनों की गति पे अंकुश लगाना अवश्य है। उनके सामने महफूज खान बड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं। आदिल वानी, आसिफ मंजूर, फैसल डार खाना बाकी, गुलजार गुली उनकी टीम में है, तो आपके पास बल्लेबाजी में रहते हैं। और ये गेंद, और इस बार गेंद की पिच तक पहुंचा, हल्के हाथों के साथ उसको वही पास में ऑफसाइड में प्लेस किया। 1 रन और खूबसूरत तरीके से रन पूरा कर लिया। 96 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे। Defensive shot and is off for a quick single. Good running between the wickets, and this is what you require. First ball we said that 6 coming over long off. The next one just dabs it and scamper through. 96 for 3. This is over number 11 we are in. Here is Dar Fazil again with a long slip in place. And Amir Sofi left alone, shouldering his arms. A typical leave like that of Mohammad Yusuf. And it's a dot delivery. 96 for 3. Over number 11. As we watch once more and once again, Dar Fazil to Amir Sofi. And Sofi is in trouble here. He's gone. It's wicket number 4 down. What's going on? Spinners are calling the shot. And one more bites the dust. Amir Sofi on his way. And look at Dar Fazil. But Sultan's no big celebration, knowing that they're still in a spot of border. They need to win this one badly, as they're on verge, on cusp. You know that if they lose this one, they qualify for Humama Airport, and from airport they will board flight to Baramulla territory. देखिए, यहाँ आपके पास उपाय एक ही बचा है, वो है विकेट लेने का। जितना आप जल्द से जल्द विकेट प्राप्त करेंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर रन संख्या की बात करें 96 तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अब जाकर के अगर बात करें तो कुल मिलाकर 73 रन बनाने हैं। जी हाँ, 73 रन चाहिए, 54 के दुकान है बाकी, उतना ज्यादा अंतर है नहीं। और बल्लेबाजी आपके पास बहुत बढ़िया है। आसिफ मंजूर नए बल्लेबाज बीच मैदान में, महफूज खान के साथ आमिर सोफी अंतिम आउट होने वाले बल्लेबाज। और अगर आसिफ मंजूर की बात करें, टीम के कप्तान और बहुत ही बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी है, अनुभव की कमी नहीं है, और वो जो अपना उनका नेचुरल स्टाइल है उसमें बल्लेबाजी करने में महारत रखते हैं। वो बीच मैदान में पहुंचे हैं और अभी भी एक बेहतरीन स्थिति में डेडू रेंजर्स, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, एक बेहतरीन रन संख्या तक पहुंचने के लिए आपको कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। यहां से फिलहाल चौथा विकेट मिला सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम को। This time it was a bit close to the bat and then turning outwards. He was shaping for the defensive shot again. He was trying to end up all that turn, but in the meantime, ball changed its original orientation of the path. Just a little deviation there, and finds an outside edge. And this is the beauty of bowler. And Fazil among the wickets. It's Nadeem Dar back into the attack. 2 overs, none for 17. Little expensive. Not little expensive, very expensive. 2 overs, none for 17. But on the other side, Fazil and Tausif Ramzan. Tausif bowled 2 overs, 2 for 15 today. Different customer all of a sudden. But Nazir, he was one of the guys who didn't got a game for JKC. He was kept waiting for so many years. He was there. But it isn't easy to make it to the JKCA playing 11. It's a kind of a dream come true. Here is the fresher first ball, and Mahfouz little back away, but unable to middle that one up the queue end, up the bottom end. A single is all he's going to get here. 97 for the loss of 4. 97 4 विकेट के नुकसान पे 11.12वां ओवर वर्तमान स्थिति में चलता हुआ, और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 72 रनों की आवश्यकता। और ये कुल मिलाकर पारी का 12वां ओवर, अगली गेंद लेकर के और बार आसिफ मंजूर के लिए, हालांकि उन्होंने खेला जरूर, गेंद लॉन्ग ऑफ की ओर जा रही है और दौड़ पड़े। 1 रन पूरा कर लिया आसिफ मंजूर ने। 1 रन के साथ रन संख्या 98, 71 चाहिए जीत के लिए। 12वां ओवर वर्तमान स्थिति में 1 विकेट की ओर तलाश होगी, लेकिन दूसरी ओर इस साझेदारी को निभाना होगा वहां महफूज खान और उनके साथ आसिफ मंजूर को। Over number 12, Nadeem in his third over, 2.2, none for 17. Mahfouz on to 10 of 5 balls into the double figures. And Asim Manzoor 1 of 1 run a ball. Oh, just past an edge there. And this is the area of vulnerability. Our batters are very vulnerable in that area. And it reminds me of Indian batters playing in England. And when ball pitches in that zone on X1, playing it close to the body, bat and pad close together. It's better to stretch forward or just take a step ahead, or just stretch or plant your left foot out of the line of the ball than to defend. Or then use that defensive skill to perfection. Keep eyes on the ball. Head, it must be straight.
and eyes on the ball. You need to be watchful. और ऐसे में अगली गेंद लेकर के नदीम डार चर्चा जारी रखेंगे और वो गेंद लेकर के तैयार हैं आसिफ मंजूर के लिए। उनकी ये गेंद बड़ा स्ट्रोक और उसमें सफलता मिल गई, लॉन्ग ऑन के ऊपर मैदान से बाहर। आसिफ मंजूर का प्रिय स्ट्रोक, जस्ट मौखारा छक्का आसिफ मंजूर के बल्ले से निकलता हुआ। What a connection and what a shot. He's picked bounce out of it. It's 105 on the board. 100 comes up with that huge six, humongous blow. And Nazir, we use that sentence for it. Minimum effort, maximum reward, but it was asking to be hit. It was in the zone, in the butcher zone, and so does the batter. With ease. देखिए, आप आसिफ मंजूर के विरुद्ध इस प्रकार की गेंदबाजी नहीं कर सकते। ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप की शेप पे उसको खेला जरूर, वही पास में लुढ़काया आसिफ मंजूर ने। हालांकि पहले रन की तलाश में थे, लेकिन उसके बाद देखा गेंद वही पास में लुढ़ के वापस अपने कदम सुरक्षित क्रीज में खींचे। आखिरी गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ 105 4 विकेट के नुकसान पर। 48 गेंदों से 64 रन चाहिए जीत के लिए डेल्ही रेंजर्स की टीम को, और 6 विकेट सुरक्षित है। आसिफ मंजूर और महफूज खान की जोड़ी बीच मैदान में, और आने वाले बल्लेबाजों में अभी गुलजार गुली, फैसल डार और आदिल का आना बाकी। गौहर लगी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो इस टीम का हिस्सा है और वो भी अभी वहां डगआउट में बैठे हुए हैं। तो यहाँ इस जोड़ी पे काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अभी भी 8 ओवर का खेल, लेकिन यहाँ विकेट को लगातार अंतराल के बाद चटकना होगा, तब जाकर के कुछ बात बनेगी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। और इन बिटवीन क्या 1 ओवर की और गेंदबाजी यहाँ तौसीफ रमजान से करवाने का प्रयास करेंगे वहां इम्तियाज लहफी या नहीं, ये देखना होगा। ये बड़ा दिलचस्प प्रश्न उनके लिए रहेगा। Tausif Leghi back into the attack. 2 overs 2 for 15. Mahfouz 11 up 7 balls and his partner is on to 7. But Asif Manzoor need to bat till the very last moment. But on the other side, Sultan still required. Wickets in heap, in bundles, in pockets. It's 105 for 4. A little partnership of 30-40 will mean Delhi Rangers over the line. 48 balls, 64 needed. 8 an hour is the asking rate. Current rate is 8.64, around that. It is something like that. But today's victory will mean doors are closed for Sultan Warriors. Is it? Yes. देखिए, वो पिछले मुकाबले में उस प्रकार का प्रदर्शन, हालांकि वो क्लोज गेम्स जो हारे हैं उनके चलते जो उनकी इस प्रतियोगिता में बने रहने के चांसेस हैं वो थोड़े से अब हालांकि कहना चाहिए गंभीरता की स्थिति में बने हुए हैं इस मुकाबले को लेकर के। और अगर यहाँ से वो मुकाबला जीते हैं तो फिर चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि अगला मुकाबला उन्हें अभी खेलना है कैफे पे कंट्री के साथ। तो ऐसे में आसान परिस्थितियाँ रहने वाली नहीं है, लेकिन वर्तमान स्थिति में कुछ बेहतर करना होगा, यहाँ से वापसी करनी होगी, यहाँ से इस मुकाबले को जीतना होगा सुल्तान को। और वहीं पे अगर डेल्ही रेंजर्स की बात करें तो वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं और अच्छी स्थिति में है, क्योंकि उनके पास अभी भी 6 विकेट सुरक्षित हैं और कुल मिलाकर यहाँ से जीत के लिए मात्र 64 रन बनाने हैं। 48 गेंदों का आना बाकी है और 2 दिग्गज खिलाड़ी आसिफ मंजूर और महफूज खान बीच मैदान में बने हुए हैं। Well, it is 105 for the loss of 4, 64 away. Change in the bowling. Captain goes back to pace. Tausif Leghi. He was about to send in over and ask it to hand over the ball, and captain goes back to pace. What he has in store, let's find it out. Sahil Khan to bowl for the first time, I think. Sahil is gonna bowl. Really? He bowled 1 over? Well, our score will surely let us know. But Nadeem bowled, yes, Sahil bowled 1 over, none for 16. Expensive. Is he gonna turn the tide this time round? He's back for the second spell. His team is in desperate need of a breakthrough. But Mahfouz and Asif Maras is in mood here. They want to finish it in style. They want to walk away unhurt. नए ओवर की शुरुआत साहिल खान अब प्रारंभ करने जा रहे हैं गेंदबाजी। ये पारी का कुल मिलाकर 13वां ओवर होगा। 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 105 4 विकेट के नुकसान पर पहली गेंद, इस बार बड़ा स्ट्रोक और यहाँ महफूज खान के बल्ले से निकलने वाला ये जस्ट मौकारा छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर। पहली गेंद पर स्वागत वहां साहिल खान का महफूज ने किया और इस छक्के के साथ रन संख्या डेल्ही रेंजर्स की पहुंच चुके हैं नेल्सन पे 111 पे 4 12.1 के बाद। Well covered with a great shot over long off. Nicely done. Superb shot. Nelson on the board, 111 for the loss of 4. This over number 13. And pressure is straight away on bowler. Sahil is leaking today. He gone for 22. I think it was better to use that pace
and it was better to use that spin combo here. And the other thing is, if you're a pacer, you need to variate. Use that pace of delivery in between and roll fingers over the ball. That's lacking from this lad. देखिए वो विविधताएं अभी तक देखी नहीं है साहिल खान ने। पिछला ओवर जो उससे पूर्व उन्होंने किया था उसमें अच्छी खासी जो है रन गति उन्होंने खर्ची थी और कुछ दिशाहीन गेंदबाजी लेग स्टंप की शेप पे अपनी दिशा भटके थे, ऑफ स्टंप से बाहर उन्होंने कुछ गेंदबाजी की थी, इसमें उनको हटा लिया गया था। अब जाकर के उनका इस्तेमाल और पहली गेंद पर उनका स्वागत। दबाव इस समय गेंदबाज पे होगा। 111 रन संख्या इस समय 4 विकेट के नुकसान पर डेडू रेंजर्स कश्मीर। 13वां ओवर, एक गेंद अभी तक फेंकी जा चुकी है और महफूज खान बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 17 पे नाबाद है 8 गेंदों से, 7 आसिफ मंजूर 7 पे 3 गेंदों का सामना किया और अब करके यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए 58 रन की आवश्यकता है। अगली गेंद लेकर के तैयार साहिल खान और सामने है महफूज और वो सामना करने के लिए तैयार इस गेंद का। अगली गेंद उनकी फिर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन गेंद नीचे रही, बल्ला हवा में झूला, संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट के साथ संतुष्ट रहे और ऐसे में रन तो आया नहीं। 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। 111, 4 विकेट के नुकसान पे साहिल खान गेंदबाजी कर रहे हैं। Nelson on the board. Something is cooking inside his body and it stays too low. Otherwise he was once again in mood to put it away. But that's a dot ball. That's a precious dot. Here he comes again. Sahil to Mahfouz. And Mahfouz dabs it. Wanted a single or fumble on the field. Allowed a single. This isn't good at all from fielders. They need to back the bowlers. They need to drive singles. This is how you can put more amount of pressure on batters. और कहीं ना कहीं फील्डिंग भी उस प्रकार की नहीं रही है सुल्तान वारियर्स बारामूला की। हालांकि कुछ कैचेस जरूर लपके हैं वहां पर। नदीम डार ने वो बहुत बढ़िया कैच लपका था और ऐसे में अगर कुल मिलाकर देखें तो उस प्रकार की क्षेत्र रक्षा अभी तक देखने को नहीं मिली है इस प्रतियोगिता में जिस प्रकार के लिए वे जाने जाते हैं। Unable to drive singles and once more we saw the fumble on the field. Sloppy fielding isn't up to the mark and Sultan and the fielders need to back the bowlers. 112 for the loss of 4. Next one, no scramble C moment, but he's right behind this one. Looks it away. A single is all he's gonna get. 113. Each and every run will mean that it's gonna be lesser agony. It's going to be Dedu Rangers the happiest side, but on the other side Sultan need to compound their agonies. और जितना यहाँ डेडू रेंजर्स के लिए हर सिंगल के साथ अंतर कम होता जाएगा उतना दबाव बढ़ता चला जाएगा सुल्तान वारियर्स की टीम पे। यहाँ इस रन संख्या को जो है अंकुश लगाना होगा, स्कोर बोर्ड पे थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा, लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं दिया है। और ऐसे में आवश्यक तौर पर यहाँ आपको स्पिन गेंदबाजी से आक्रमण सजाना होगा। जितना आप स्पिन गेंदबाजी करवाएंगे उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि रनों की गति पे न सिर्फ अंकुश लगाना बल्कि एक विकेट की तलाश जरूर होगी गेंदबाजों को। अगली गेंद महफूज के लिए इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, खेलना कहीं और चाहते, गेंद कहीं और गई, फील्ड तो हुई, रन मिला नहीं यहाँ महफूज खान को। 113 पे 4, 12.5, एक गेंद का आना बाकी। Miss it or mistime it this one, but on the bounce to field. So no harm done. 113 for the loss of 4 over number 13. One last time in this over, Sahil Khan 1.5, none for 24. A third man is in place. Shadid is another good delivery. Nicely bowled, nasty one, but somehow he drops his wrist and keeps it down to point. One more run added. We're done with over number 13. 114 for 4, and Dedu Rangers required at the rate of 7.86. 42 balls. The number of runs they require 55. 55 चाहिए, 42 के शेष, 4 विकेट सुरक्षित। ये है अब तक का लेखा जोखा। और नदीम डार को गेंदबाजी एक बार फिर थमा दी है वहां इम्तियाज लेफ्टी ने। और नदीम डार को अभी तक सफलता नहीं मिली है और एक बार फिर उनके पास जो है गेंदबाजी के ऑप्शन को लेकर के इम्तियाज लेफ्टी गए हैं और देखना होगा क्या यहाँ से इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे, क्या यहाँ रनगति पे अंकुश लगा पाएंगे, ये देखना होगा। फिलहाल पारी का ये 14वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 13 पूरे 114 पे 4, 54 चाहिए, 42 की दुकान है बाकी। 55 needed of 42 balls. Nadeem brings himself on again. He decided to hold to the ball. He says, skipper, let me try once more. And he's going to give it a try. He's going to give it a go again with the ball. 55-42. To me, it's Dedu's game to lose from here. They're very much in with a chance, but you never know what cricket has in store. As we watch, a fresh over is about to start. Skipper at slip. Wasim Khatri is up to the stumps. Mahfouz on strike. A left-hander Mahfouz, 19 of 12.
Back away, hits this one, that's in the gap, and that's gone all the way. 6 more, half a dozen, and what a start turnover. Nadeem Dar is off colour today. He's taken on once again with that big shot, and that too in the gap, and all the way for 6, half a dozen. It's 120 for the loss of 4. They're 49 behind, 41 balls remaining. I think it's almost all over. महफूज खान अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं कश्मीर कप में और बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की है। नदीम डार की ये गेंद और इस बार उसको स्वीप करने का प्रयास किया जरूर था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। लेग स्टंप से बाहर थी, वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ 121 पे 4, 13.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। नदीम डार लगातार खर्चीले साबित हो रहे हैं, कोई प्रभाव छोड़ नहीं पाए हैं, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तिरछे रन आपके साथ ये गेंद फिर महफूज ने खेला, अंदरूनी भाग लिया, दौड़ पड़े वहां पर रन के लिए, रन जरूर मिला दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में 122 पे 4, 13.2 ओवर की गेंदबाजी। Over number 14 we are in. The winner of today's match will be happiest side at the end of the day. If they do win this one, they will cement their position. They will have something to cheer about, but Sultans need to pack their bags and they're out of competition. 122 for 4. The last ray of hope is to win this one and stay alive. Next one clipped away nicely in front of Scaron onside. A single is all he's gonna get. It's 123 for the loss of 4. 123 4 विकेट के नुकसान पे पारी का 14वां ओवर वर्तमान स्थिति में चल रहा है। नदीम डार गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने महफूज खान रहेंगे, हालांकि आसिफ मंजूर नॉन स्ट्राइक की चोट पे अच्छी साझेदारी पर रखती हुई समय, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार नदीम डार, जो कि दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज महफूज के लिए ये गेंद, और महफूज ने बिल्कुल रक्षात्मक रूप से गेंद की ठीक पीछे आए, मिडल ऑफ द बैट से खेला वापस बॉलर की दिशा में, उन्होंने गेंद को फेल कर लिया, रन नहीं आया। 123 स्कोर अभी भी टिका हुआ 4 विकेट के नुकसान पर। विकेट यहाँ अभी तक मिले नहीं है ज्यादा, 4 विकेट जरूर वहां पर प्राप्त किए हैं सुल्तान ने। ये गेंद पर ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी, हालांकि अतिरिक्त 2 चाल भी था, स्ट्रोक खेला जरूर था, लेकिन संपर्क नहीं हुआ और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। एक और डॉट गेंद यहाँ नदीम डार की इस ओवर की। Not happy with the shot selection there, Mahfouz, and he's playing an excellent knock here. It's 123 for the loss of 4. Here is Nadeem to Mahfouz, and Mahfouz shaping for the defensive shot, and it's gone between bat and body into the safe hands, and Nadeem Dar finished his quota. Wicketless, 4 overs, none for 35. And the second match of the day is loading. It's going to be Police taking on Dedu Rangers Kashmir. नया ओवर, और क्या यहाँ गेंदबाजी का इस्तेमाल किसी और गेंदबाज से करवाया जाएगा? जी नहीं, इम्तियाज लेफ्टी अब खुद जा करके गेंदबाजी करेंगे। 123 4 विकेट के नुकसान पर 14 पूरे 36 गेंदों का आना बाकी, और जीत के लिए अभी भी 46 रन चाहिए। 36 गेंदों से 40 रन, ये है इक्वेशन, ये है आंकड़ा, ये है लेखा जोखा। 9 पे ना बांधे आसिफ मंजूर, और महफूज खान 26 पे 17 गेंदों से 6 विकेट सुरक्षित। आदिल वानी, फैसल डार, गुलजार गुली, गौहर लेगी आने वाले बल्लेबाजों। Enough batting, great depth in the batting, huge batting lineup to come. It's their game to lose, and should win this one before 20th over to me, because it's nearing in on a runner ball here. Not a big concern to me. A team like Dedu Rangers, who got even combination, beat the batting, beat the bowling, even the fielders. They have superb combination in all the 3 aspects and dimensions. Over number 15 about to start. Imtiaz Lefty is going to bowl back into the attack. Asif Manzoor in the gap. Call is for 2. Running hard between the wickets. Quick running between the wickets, but only a single. 124 for the loss of 4. 124 और अब 45 चाहिए, 35 गेंदों का रहा बाकी। इम्तियाज लेफ्टी 3.1 ओवर, कोई बैटर नहीं, 20 रन 1 विकेट। अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है, 1 विकेट उन्हें मिला है और अपना कोटा पूरा करने जा रहे हैं। 4 ओवर का जो सीमित कोटा रहता है गेंदबाज का, वो इस समय उसको पूरा करने जा रहे हैं। ये चौथे ओवर में अपने कोटे की गेंदबाजी कर रहे हैं। 45 की आवश्यकता और 35 के दुकाना बाकी। अगली गेंद महफूज खान के लिए, इम्तियाज लेफ्टी चले ये गेंद, और इस बार उसको तिरछे बल्ले के साथ गाइड किया, पीछे खिलाड़ी हैं तैनात, थ्रो किया, लेकिन रन पूरा कर चुके हैं। 1 रन और खाते में जुड़ा, और अब जाकर के 44 चाहिए 34 गेंदों से। But you can see the drooping shoulders of Sultan Warriors. Boys are feeling that we're a kind of a gut feeling that they're very much away from this one. Try get away. And this partnership, it's Mahfouz and Asif Manzoor,
who not only studied the ship but kept that scoreboard moving, ticking all along. This one, it's out of here. What a connection! And look at the distance. It's gone on to that portion where we have the headquarters of J&K Bank. It's out of here. It's a humongous, huge monster out of the Santa, and that's six brought to you by Just Booker. 21 गेंदों से 35 की साझेदारी 5 विकेट के लिए बेहतरीन साझेदारी, छोटी छोटी साझेदारियों के चलते ये मुकाबला अब समय फिसलता हुआ सुल्तान वॉरियर्स के हाथ से और निश्चित तौर पे हालांकि वो अब इस प्रतियोगिता के अगर हम बात करें तो शायद बाहरी का रास्ता अब तय है, क्योंकि क्रिकेट महानर्सनाव का खेल ये गेंद 10-12 से मंजूर उन्हें जगह बनाई, बैकफुट पर गए, वहां फंबल हुआ जरूर तौसीफ से, लेकिन रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ। बहुत ही बेहतरीन तालमेल का परिचय दिया, 1 रन और खाते में 132, 4 विकेट के नुकसान पे ये रन संख्या इस समय 132, 37 away, 32 balls remaining, 5 overs and 2 balls are gonna come. Imtiaz Lepti continues to bowl. Current rate is 9 and over, and required rate comes down to 6 point. Around that here is Imtiaz Lepti again. Mahfouz on strike, 27 of 18. Mahfouz in his hands. Dudu is Mahfouz. Dudu is safe. Dabs wanted a single. Shahid is quickly onto the ball, so no run again. It's a dot ball, but these dots won't do it for Sultan Waris. Heap of wickets will do it, but at this very crucial juncture these two lads are in mood and they don't want to give it up. And this one, it's in the air. There is Salim Mir. He dropped. Look at Salim Mir. Should have been taken. He dropped a dolly. You can't win matches like this. He dropped a dolly. He dropped a juicy one. Should have been taken. Catches win matches. How you can win matches when you drop a kind of a dolly, a juicy one gone down? It reminds me of that drop catch at Mirab by Shahid Shafi a few days back against Nasir Kumar, who after that gone berserk and took game away from Sultans. Again, they needed a kind of chance. They needed to break free, and was an opportunity on knocking on the doors, and the man dropped a dolly. Should have been taken. एक जीवनदान वहाँ महफूज खान को मिलता हुआ लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात थे सलीम मीर। हालांकि बल्ले से कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन यहाँ क्षेत्र रक्षण खराब, एक आसान सा कैच वो उन्होंने छोड़ा और निश्चित तौर पे इसकी आवश्यकता भी थी लपकने की, वो हुआ नहीं और नाबाद है। 133, 4 विकेट के नुकसान पर 36 चाहिए जीत के लिए। 15 ओवर पूरे हो चुके हैं, 30 गेंदों का आना बाकी और अब जाकर के तौसीफ रमजान को लेकर के आए। 30 गेंदों से 36 रनों की आवश्यकता, 133, 4 विकेट के नुकसान पर डोडो रेंजर्स। Tawseef Ramzan back into the attack. 30 balls, 36 away. Easy task for Dudu Rangers. Should be easy. Should be a walk in the park. Is it going to be a cakewalk, or is it going to be full of thorns? From here, first ball in the air. There is man, and he takes. Mahfouz is on his way. Wicket number 5 down. Mahfouz Khan departs. Tawseef Leghi has his man. One more falling into his kitty. It's third one for Tawseef Ramzan today. And look at Asim Manzoor, a pat on his chest and telling Tawseef, you are a good cricketer, no doubt about that. But Asim Manzoor, he's a rock of Gibraltar character when it comes to the batting. What a skipper and what a batter, what a cricketer he is. और यहाँ देखिए निश्चित तौर पे मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करूं कि जहाँ इससे पूर्व 2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और तौसीफ आपके पास एक प्रमुख हथियार है। विकेट उन्होंने 2 प्राप्त किए हैं, नदीम डार को लाया और उस स्थान पर अगर तौसीफ लेगी का इस्तेमाल करते शायद परिस्थितियां कुछ और होती, क्योंकि बेहतरीन गेंदबाज है। फिर इम्तियाज लेफ्टी ने गेंदबाजी की, वहां विकेट नहीं मिले और अब जाकर के गेंदबाजी के लिए उन्हें लाया गया, तो इस ओवर में एक और सफलता, पिछले ओवर में भी सफलता, तो कहीं ना कहीं यहाँ कप्तानी में भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ वो अनिरीक्षण देखने को मिला। Well, I think it was better to use that when he picked up 2 wickets. It was better to continue with the spinner there because he was in good rhythm there, and he was using his twist and tibble of the ball to perfection. He was weaving a web around the batters. Once more he trapped Mahfouz Khan, who looked in complete control. It's a kind of commentator's curse I was talking about. In his hand is Dudu Rangers are safe. It's Mahfouz like that in Urdu you call it, but in the end Tawseef Leghi says, oh Munawwar, just hold on, let me show you what I possess, and he's caught at cover point area. It was
the boy from Ganderbal, that Akepara who took that. But I think it was better to kill the momentum there. It was better to use one more over from Tausif Ramzan. Bit late. Once more, captain is letting them down. I think he's unable to use his trump card right on time. देखिए ये मेरा need to मानना है rethink and he need to work on his basics. सही समय पे उनका इस्तेमाल नहीं किया गया ये गेंद, और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी, हालांकि ऑफ साइड में दौड़ करके रन तो पूरा कर लिया। ये देखिए दिशा इन थ्रो वहां पर इम्तियाज लेफ्टी का, और जहां पे एक ही रन होना चाहिए था वहां पे दूसरा रन भी पूरा कर लिया, और 2 रन और खाते में जोड़ लिए, 2 रनों के साथ 135 5 विकेट के नुकसान पे। 135 for 5. Straight away he's off the mark with that brace. Adil Wani. When it comes to the techniques and the technicality, we call this lad, he ranks up there. It's 135 for 5. As we watch next one from Tausif Ramzan. Adil Wani 2 of 1. Slip in place, and Wani, oh look at that one. Eyes on the ball, head still, and you know how to drive it. Driven handsomely straight to long on. A single is all he's gonna get. 136, 33 away. Dido Rangers, 27 balls remaining. 136 अगली गेंद तौसीफ की, इस बार आसिफ रमजान के लिए बढ़िया गेंद थी, खूबसूरत गेंद, बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से चकमा दिया, बमुश्किल बचे वहां आसिफ मंजूर, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर वसीम काचरू ने। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी तौसीफ रमजान था। 2.4 ओवर, मात्र 18 रन, 3 विकेट उनके नाम। अगली गेंद लेकर के वो तैयार सामने आसिफ मंजूर, हालांकि अभी भी 33 रनों की आवश्यकता है। ये गेंद इस बार फिर अच्छी गेंद थी, सम्मान थी उसको, वापस बॉलर की दिशा में, एक बार फिर रन नहीं आया तौसीफ रमजान की इस गेंदबाजी पे। One more dot here. 136 for the loss of 5. 2 on the trot. A pair of dot deliveries long gone in place. Asif Manzoor will try to go hard at it, batting deep in crease. But no, in the end decided to dab it. No run there. Done with over number 16. 16 gone. 136 for 5. 24 balls. 33 needed. I think Imtiaz left him missed the ploy. It was better to kill the momentum there. Leggy was in full colours today, and talking of that lustre, he was lustrous. देखिए यहाँ पर मैं With the आपसे lackluster सहमत हूँ, in captaincy. क्योंकि आपको एक बुद्धिमानी का प्रचार करना होता है, आपको एक सकारात्मक सोच के साथ, और वो जो बॉलिंग चेंज होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है किसी भी मुकाबले के लिए। बॉलिंग चेंज किस प्रकार से आप करेंगे, कब किस गेंदबाज को इस्तेमाल करना है, इस चीज़ पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है अगर हम इस प्रकार के मुकाबले की बात करें। और यहाँ उस चीज़ की थोड़ी सी कमी ज़रूर देखने को मिली इम्तियाज लेफ्टी द्वारा। तो आसिफ रमजान ने 3 ओवर में यहाँ 18 रन खर्चे, 3 विकेट उन्होंने प्राप्त किए, और 1 ओवर अभी भी उनका शेष है। ये 17वां ओवर पारी का प्रारंभ होने जा रहा है, और ऐसे में देखना होगा क्या नदीम डार से गेंदबाजी होगी अथवा सलीम मीर से, और ऐसे में एक विकेट की तलाश में जरूर रहेगी सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम। और यहाँ सलीम मीर को लेकर के आए हैं। सलीम मीर अब नए ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। 16 ओवर पूरे, 136 5 विकेट के नुकसान पे, 24 गेंदों से 33 चाहिए और 5 विकेट सुरक्षित। Here is Salimir to ball with a slip in place. Captain goes back to pace again. I think least number of resources available. Here is first for Rapson on the pad, and the 2 batters scamper through quickly. Good running between the wickets. Fielding isn't up to the mark. This is the weak link as far as Sultans are concerned. One more run at it. Zui is here. He wants to see Dido's over the line. 137 for the loss of 5. 32 away, 23 balls remaining. Here is Salim again, but this time it's skipper on strike. Oh, this one, oh, takes a body blow. But good running between the wickets. Runs are important. How they commit hardly matters. Takes a body blow, bat and then helmet, and is still off for a quick single. आपको रनों की आवश्यकता है, और वो रन आसिफ मंजूर, हालांकि वो एक बुद्धिमानी क्रिकेटर है, उन्होंने रन तो पूरा कर लिया है, 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या अब जाकर के 137 और 32 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये पारी का 17वां ओवर वर्तमान स्थिति में सलीम मीर गेंदबाजी कर रहे हैं, और सामने रहेंगे आदिल वानी, एक दिग्गज खिलाड़ी है आदिल वानी, जो कि स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, जड़ में फेंके हुए, खेला जरूर, संपर्क तो हुआ नहीं, वही पास में लौटका, लेकिन तेजी के साथ। ये देखिए दोनों बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ 1 रन और पूरा कर लिए, और 1 रन के साथ 138 तक रन संख्या पहुंच चुके। And I'd say with him, inner edge onto the pad. Had that missed the bat, would have been absolute plum. Deadwood plum in front. And it's 139 for the loss of 5. 30 away,
21 balls remaining. Slip is still there. Salim to Asif, and this one. There is a man underneath the ball. Is he going to take this? Oh! Oh, does well, does very well. Excellent effort. This is Akipara for you. Great athlete. Acrobatic skills. But we'll have to wait and watch. Decision is pending. Decision pending. Call is yet to come. What it is, just a brace. Hit in middle, that one. Would have been absolute blind. But still, Saber 2 runs for his team. 141. अगली गेंद लेकर के आसिफ मंजूर के लिए इस बार कनेक्शन सही और गेंद सीमा रेखा से बाहर. खराब गेंद और खमियाजा मुक्ताज अस्मोखरा छक्का. He tried to bang in shot, hop track, and this is the weak link of Salim Mir here. But he never know that who's on strike. It's Asim Manzoor. Swivel on its axis, belted it somewhere in the golf club. There is just Bukhara 6, and what a connection. And again, scorecard is flattened. It's 147. That pressure is absolutely gone. And here is Salimir again. Oh, this one little fuller. And beats the bat. It's a dot to end the over. 147 for 5. 18 balls, 22 needed. 147 पे 5 और ये खराब गेंद जो इस ओवर की पांचवी गेंद थी और उसको खूबसूरत अंदाज से पुल किया था. गेंद सीमा पार चली गई थी 6 रनों के लिए. वो जस्ट मुखरा छक्का और ऐसे में 147 5 विकेट के नुकसान पर अब जाकर के 18 गेंदों से 22 रनों की आवश्यकता. जी हाँ, 22 चाहिए. 18 गेंदों का आना बाकी. आसिफ मंजूर और उनके साथ आदिल वानी, ये दिग्गज खिलाड़ी अभी बीच मैदान में. बल्लेबाजी में कोई शंका नहीं. आपके पास अभी फैसलदार का आना बाकी है, आपके पास गुलजार गुली हैं, आपके पास आमिर अली हैं और आपके पास अंत में गौहर लगे हैं. तो बल्लेबाजी में आपके पास विकल्प है. और इन परिस्थितियों में 147 पे 5, 18 गेंदें, 22 चाहिए. सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के खिलाड़ी इस समय निराश जरूर हैं. चेहरे निराश नजर जरूर आ रहे हैं, उनके समर्थक भी निराश नजर आ रहे हैं. लेकिन इन परिस्थितियों में अगर देखना होगा यहाँ से क्या कुछ चमत्कार हो पाएगा. और अब जाकर के अंतिम ओवर अपने कोटे का 18वां ओवर लेकर के तौसीफ रमजान. पहली गेंद तौसीफ की और इस बार उसको खेला जरूर बहुत ही बेहतर तरीके से. खाली इलाका चुना, उस ओर खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे और काफी दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई. यस मुखरा चौका. 151 5 विकेट के नुकसान पर 17.1. 17 गेंदें और अब जाकर के जीत के लिए 18 रनों की आवश्यकता. Beautiful shot. Scoops it away. Scoop comes into play and gone fine down to the fine leg fence for 4. A 4 to start the over. Next one, no. Wanted to guide it, beaten on that occasion. It's a dot ball. Asif Manzoor isn't happy. He's asking Adil Wani it was better to put it away. Down towards the extra cover area. But he gets away with that one. It's a dot ball. 151 for the loss of 5. Tawseef Ramzan in his 4th over. Cut up nicely in the gap too. Should find the boundary. Yes, it does. That's 4. Down to the sweep of cover boundary. Cut away nicely. That was brought to you by Just Bukhara. And it's 155. 2 back-to-back boundaries. And Tawseef is on the receiving end. Talking of his quota 3.3. 3 for 26. 26 रन ने खर्चे 2 चौकों की वजह से अब थोड़ा सा बॉलिंग विश्लेषणों का थोड़ा सा बिगड़ा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की. 155 14 की आवश्यकता है यहाँ से जीत के लिए. और इन पर में 15 गेंदों का आना बाकी. 15 गेंदें 14 रन. अगली गेंद तौसीफ की और इस बार आदिल वानी ने बैकफुट पर जाकर के पुल किया गेंद को. हालांकि उस ओर खिलाड़ी तैनात है आगे पर, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया. 1 रन और खाते में. 13 गेंदों से 14 चाहिए. 14 away. 14 balls remaining. And they are 13 away. Here is Tawseef Ramzan again. Slip still is in place. Is he gonna pick one more here? Asif Ramzan. It's Asim Manzoor. Oh, that's gone into the J&K Bank. 6 more. And look at that blow. And Tawseef goes back to the top of his bowling mark with a hat on his head. What can he do? Look at that blow. It's a Caribbean shot. It's a Caribbean style 6, and that 6 brought to you by Just Bukhara, and it's 162, just 7 away. 7 रनों की आवश्यकता जीत के लिए. 162. तौसीफ रमजान अगली गेंद लेकर के तैयार. अंतिम गेंद उनके कोटे की 18वें ओवर की अंतिम गेंद. 162 5 विकेट के नुकसान पर डोडो रेंजर्स. 169 के जवाब में मात्र 7 रन चाहिए जीत के लिए. और सामने हो गया आसिफ मंजूर. क्या बढ़िया स्ट्रोक था वो लॉन्ग ऑन के ऊपर. काफी दूर गेंद चली गई थी 6 रनों के लिए. अगली गेंद और इस बार रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेला, लेकिन पीछे मिस फील्ड और चौका मिलेगा. यहाँ गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए. खराब क्षेत्ररक्षण और अब जाकर के
166 18 पूरे 3 चाहिए जीतने के 12 गेंदों से। Dedu's will end their winning streak, and it's going to be a huge victory for Dedu Rangers. And Sultans just have 3 runs to defend here now, and Dedu's need 2 to level, 3 to win. It's almost all over. Akipara asks it to bowl, and he's gonna bowl here. That's going to be over number 19. Just 3 runs away, and Sultans are almost out of competition now. Doors are closed, and Sultan Warriors will qualify for Humama Airport, and from Humama they will boat flight back to Baramulla territory today. It's 166 for the loss of 5, just 3 runs away. The qualification scenario, a simple qualification scenario for this team, but come back next time. Tough luck this season, and better luck next time. It's a dot ball to start the fresh ever, but I think few things let them down. One was the field, the other thing that the captaincy can't kill the game at the right time, and these things were lacking over the past couple of days. Even we have been witnessing over here. Oh, look at that run. This is Adil and his technique of going off to the bowler straight down to the sight screen area. One more run, 167 for the loss of 5, 2 runs away from winning this one. Here is it going to be the final ball of the match? Here is with that scores a level. Dedu's can't lose this, but Sultans need a miracle to take it to the super over. That is mission impossible. It's almost all over. Curtain is down, 1 away. You're almost 1 away. And with this, that's 4. Just Bukara 4 to end the Sultana journey in the tournament. Dedu Rangers finally breaking free and winning this one. And that winning streak comes to an end for Sultan Warriors against Dedu Rangers. Myself Manabar, I got Sheikh Nazir to take you back with this message. We'll be back shortly with Dedu's taking on JK Police Warriors. Join us for that game. Till then, take care of yours. Assalamu alaikum and bye-bye from our side.